सहस्रारे महापद्मे किञ्जलत्कणशोभिते प्रफुल्लपद्मपत्राक्षी दानपीनपयोधरां सहस्रवदनां नित्यां क्षीणमद्यां शिवां गुरुं पद्मरागसमाभासं रक्तवस्त्रशोभिनं रक्तकङ्कणपाणिचं रत्ननूपुरशोभितं शरदिन्दुप्रतीकाश वक्त्रोक्तासीतकुण्डलं स्वनाथवामभागस्थं वराभयकराम्बुजम् Guru-sarva Karanabhuta Shaktihi. I'd like to thank Indus University for giving me this opportunity and Datya Peeth to present a small talk on my tradition, the Pashupat Srividya tradition, and the traditions that are abroad generally for Shaktaya, including Srividya. Shaktas is a very broad term, an extremely broad term. If we talk about Shaktas, it includes Kalikola, Shrikul, Kubjikamat, so many different schools. Or what I'm trying to say here for Shaktas is not Srividya, Shaktas, all of the Upasakas for Shaktas will come from different schools. For the Srividya, we could say all Srividya Upasakas are Shaktas, but not all Shaktas are for Srividya school. तो उसमें अंतर्गत बहुत है, सभी लोग शाक्त तो सब लोग हो सकते हैं, पर लेकिन जो खासियत होता है श्रीविद्या इज ए पार्ट ऑफ शाक्तस, तो जो श्रीविद्या को उपासक होता है ये शाक्तस होता है. अभी जो गुरु तत्व पे हम लोग बोल रहे हैं, जो गुरु तत्व बहुत इट्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट इन श्रीविद्या. विदाउट द गुरु देयर इज नो देवी, विदाउट गुरु देयर इज नो शिष्य. So that triad, the triangle of the Guru, Shakti and Shishya is very, very important. So as we're talking about the paramparas of Guru traditions of the Shaktaya, we cannot exclude Guru in any context. Guru is mentioned in many texts in Srividya. If you're talking about, as Giriratna ji had mentioned in the Kulana Tantra, there's a lot of discussion on the Hamsa Bija and the Guru and the Lakshanas of Guru. You're talking about in Srividya Kula Yoga, the Manvog and Divyog and Siddhyog. Every Devta would have a Manvog, Siddhyog and a Divyog Devta grouping of Gurus. Also, you talk about the Nonat-kram. In the Nonat-kram, they talk about the Srividya Samsiddhya, Sri Kruta Anika Vigraha. The Guru will come in many rupas. So it's not specifically only just in your rupa. The Gurus, in the Sthul Swarupa, we have the Guru who directs us in our Vidya. But, so going back, we were discussing about the Guru is mentioned in various tantras. Every lineage of Sri Vidya would run towards one tantra. Many of the Dakshina schools of Sri Vidya would go towards the Parshuram Kalpasutras. In our school, in my school of Kashikat Pashupat Sri Vidya school, we follow the Parmanand Tantra. In there, they talk about the Navnathas. So even in the Rashmikram, in the Bindu Chakra itself, we talk about 360 Gurus. So a Guru is a very vibrant, a very essential part of Srividya. Now coming to, again, the importance of Guru. If you read the Lalita Sahasranam, in many contexts, they talk about Sri Lalita Devi, Sri Rajrajeshri, equated to the Guru. They talk about Guru Murti is one of the names. The other name they talk about is Guru Rupini. They also call Lalita Tripusundari Dakshina Murti Swarupini. Another place that in Lalita Sahasranam where they mention the Guru is talk about Guru Mandala Swarupini. So here we will also talk about the importance of Parampara. What is a Parampara? Every good school of Shaktaya would have a Parampara. The legitimacy of any Parampara, the importance of Parampara is very, very important in that. What is a Parampara? A good lineage of Parampara should have at least a minimum of Guru Traya. Guru, Param Guru, Parameshri Guru. Obviously, nowadays people are reading books and becoming Gurus. That's not the way. You should always have a lineage. If someone asks you your identification, you say, this is my Guru, this is my Param Guru, this is my Parameshri Guru. So the way what we vet with Guru Paramparas is that if you ask the validity of a Guru Parampara would have three Gurus beyond you. That's very, very important. Some places go even further than that and go further to the Guru Chatushrupini. In the Balakram, we talk about Guru Chatushrupini, so the 4 Gurus before that, Guru Param Guru, Parameshri, Paratar Guru. So that's the validity of a good Guru Parampara. Now, talking about as my Guruji had mentioned,
इन द प्राचीन सभ्यता ऑफ श्री विद्या में अष्टो संप्रदाय है जो प्राचीन में हम लोग बोलते हैं। तो अष्टो द 8 संप्रदाय ऑफ श्री विद्या देवधर, केराल, उपहार, भटारक, भूत भैरव, रामानंदी, दुर्वासा एंड द पाशुपात्स। अभी क्या है कि ये सभी परंपरा अभी लुप्त हो गया है, शायद होएगा कई जगह पे, पर अभी तक मेरे को मिला नहीं है। पर जब हमारा जो गुरुदेव जो 5वां जो गुरु था अच्युतानंद जी स्वामी, उसका गुरु विक्रानंद ना था, तो जो काशी में उसने दीक्षा लिया था श्री विद्या में, और उसका गुरु जी का आदेश यही था कि ये जो अष्ट संप्रदाय जो है इसमें से जो पाशुपात संप्रदाय है आप आगे बढ़े। तो ठीक है, तो अभी आप लोग बोलेंगे ये जो पाशुपात संप्रदाय क्या है। हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो श्री विद्या होता है तंत्र महाग शक्ति होता है, ऐसे तो शक्ति प्राधान्य ज़्यादा होता है, सही बात है। पर तब आप जब अनुत्तर अवस्था में आप पहुँचता है तो उसमें जो शिव और शक्ति इक्विलिब्रियम में होता है, सभी का बैलेंस, एवरीवन हैज़ अ बैलेंस ऑफ शिव एंड शक्ति विद इन योरसेल्फ। कई बार शक्ति प्राधान्य होता है, कई शिव प्राधान्य होता है। हमारा परंपरा में क्या होता है कि जितने शक्ति प्राधान्य मंत्र और पूजा पद्धति होते हैं इसमें भी शिव प्राधान्य भी इतने होता है, जैसे बटुकनाथ शिव क्रम, सर्वेश्वर क्रम, ऐसे कई शिव प्राधान्य होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारे जो श्री यंत्र होते हैं, जब ऊर्ध्व त्रिकोण होते हैं मुख्य में, हम लोग 180 we revolve the श्री यंत्र by 180 degrees and become श्री प्राधान्य, शिव प्राधान्य for Mahaganpati, for Batuk, etc. So that's how the Kram happens in now. So we're not talking about the Pashupat schools of Lokulesh. We're talking about a different aspect of Shakti Upasana in the Pashupat. So as Shiv and Shakti in equilibrium, हम ऐसे मानते हैं, दोनों का प्राधान्य रखता है। So going further now, let's going into the gurus of Shaktaya. As my guru Achyutanand Ji, who was born around the 18th century, he was initiated in the Pashupat Shri Vidya traditions, and in them days गुरु का जो स्वभाव होता है ऐसे नहीं होता कि बस सभी को आध्यात्मिक दर्शन दे देते हैं। गुरु, सच्चा गुरु क्या होता है कि जो देश, who looks after the country, जो देश के पीछे लग जाता है, कि जो देश का उद्धार हो सकता है। तो ये बहुत खास होता है। जैसे दत्तापीठ महाराज है, उसने खुद के लिए नहीं सोचा, उसका शिष्य के लिए नहीं सोचा तो पूरा देश को सोचता है। ये अच्छा गुरु होता है, ये सही गुरु होता है कि जो इतने, उसका सीमा इतने तक नहीं होता, सीमा इतने होने चाहते हैं कि पूरा देश उसमें समा जाता है, इसलिए उसको राष्ट्र गुरु बोलते हैं ना, गुरुदेव को। तो गुरुदेव ऐसे होने चाहिए कि जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। तो जब अच्युतानंद जी स्वामी जो था, अभी हम ग्वालियर गया था 2 दिन पहले, तो मालूम पड़ा कि उसका वहाँ दरबार सब कुछ कितने हैं। तो उसका सोच ये तो था श्री विद्या में सभी भक्तों को आगे ले आए, पर साथ में उसका ऐसे सोच भी था कि देश का कैसे हम लोग स्वतंत्र ले सकते, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके कई शिष्य लोग थे। तो अभी जो झांसी की रानी जो बोलते हैं ना, तो मणिकर्णिका तांबे, तो उसको जो काशी में उसने श्री विद्या की दीक्षा दिया था। कई लोग को मालूम नहीं होएगा ये, पर जो झांसी की रानी को जो था उसको भी श्री विद्या की दीक्षा दिए थे अच्युतानंद स्वामी, उसको भी दीक्षा भी दी थी। तो कुछ उल्लेख तो है उसके किताब में। और उसके साथ जो जब राजा थे वहाँ पे, एट दैट टाइम there was a lot of destruction, a lot of insights coming in from different countries and different people. So therefore the king also needs some sort of moral support. Moral support comes with spirituality. तो जैसे झांसी की रानी थी। दूसरा उसका पुणे में आपने नाम सुना होगा कि जो बाल गंगाधर तिलक, तो उसका भी नाम है कि गुरुदेव ने उसका शाक्त दीक्षा दिया था। और शाक्त दीक्षा दिया था, वो बाद में उसने बोला कि अभी समस्या ऐसे है कि जो देश का हाल जो है, सभी लोग डिप्रेशन में है, जो समाज है टूट रहा है, इज ब्रेकिंग अप, द सोसाइटी इज ब्रेकिंग अप। सो हाउ डू वी ब्रिंग अ सोसाइटी टुगेदर, ये जो लोग हैं उसको कैसे हम उसका स्पिरिट्स अपलिफ्ट करते हैं। तो उसने बोला था कि एक बात करें कि ये जो भाद्रव पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का चौथा दिन होता है, 10 दिन का आप उत्सव रखो। तो बाल गंगाधर तिलक को उसको आदेश दिया कि ऐसे करोगे 10 दिन का ये उत्सव रखो, और बाद में देखते कि समाज में क्या अच्छा रहेगा। अभी तक इतने फेमस हो गए तो सभी जगह पे गणेश उत्सव रखता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो गुरु बस इतने नहीं होते कि बस आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते हैं, ऐसे होने चाहिए कि आपका जो देश का सभी संसार सभी लोग का उद्धार कर सकते हैं। अभी आगे आएगा। अच्युतानंद जी स्वामी का शिष्य था अच्युतानंद जी सीताराम गुरु पुणे के गुरु, उसका शिष्य था गणपतराम शास्त्री, जो हमारा परमेश की गुरु था। तो उसने ये जो पाशुपात ट्रेडिशन गुजरात में लाया, बहुत
जैसे भैया बोलने लगे गुरु ऐसे होने चाहिए कि जो वेदाचार में न्यू वेदाचार, जिसको वेदाचार आते थे, साथ में उसको जो तंत्र शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे गुरु होने चाहिए, तो आप थोड़ा पूर्ण होता है। तो जो गणपत राम गुरु था तो उसने भी बहुत सोचा कि देश का कल्याण कैसे करो। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में इधर का, तो 1945 में उसको कई साधु लोग मिला था गुजरात में कि देश के लिए आप कुछ करो। ऐसे तो कई गुरु लोग बोलते हैं पर आप गुजरात के लिए कुछ करो। तो उसका उपासने थे बगलामुखी और भुवनेश्वरी में। तो उसने सोचा कि अभी तक इधर भारत में भुवनेश्वरी का कुछ पीठ नहीं है, तो उसने गोंडल में भुवनेश्वरी का स्थापना किया था। तो ऐसे हम लोग जैसे गुरु है ऐसा हम लोग अभिमान तो रखते हैं ऐसे कि जो गुरुदेव ने 1945 में भुवनेश्वरी पीठम का स्थापना हुआ, 2 साल बाद में इंडिपेंडेंस हुआ था। तो ऐसे में बोलता है कि जो शाक्त गुरु होने चाहिए कि सही बात है, आध्यात्मिक को आपको आगे ले लो, और बाद में ऐसे भी होने चाहिए कि सभी का कल्याण उसमें होता है। अभी मैं बोलूँगा जो मेरा गुरु जो था श्रीदेवी बा, ये भी क्या फॉरेन में गया था। तो जब 40 साल पहले मेरे को दीक्षा दी थी तब मैं छोटा, मैं वहाँ से जन्म हुआ, लंदन का सब कुछ है, हिंदी तो अभी थोड़ा सीख रहा हूँ। तो वहाँ भी उसने कुछ दीक्षा दिए था। शुरुआत में हमको उपासना खूब करना पड़ा, कई साल उसने बोला कि आपका जो फाउंडेशन है ये पक्का करो। तो इसलिए हमारा ज़माने में क्या था कि आप एक मंत्र दिया तो 20 साल आप करो, कोटि जप करो जब करो जब तक गुरु को ठीक लगे कि आप आगे बढ़ो। आजकल तो बहुत जल्दी है कि सभी को आगे बढ़ना, सभी को दीक्षा चाहिए, वो ये बात नहीं। अभी मैं सोचता हूँ 40 साल बाद में कि उसने जो किया है अच्छी बात है कि आप लोग जो नया साधक है आप मेहनत करो, छोड़ो जो दीक्षा है, आगे क्या लेना है, क्या मंत्र लेना, जो भी है गुरु पे जो सब कुछ छोड़ दो। वो क्या कि आपका जो फाउंडेशन होता है तो आगे का जो मंत्र है सब कुछ इतने आसान से आ जाएगा, आपको जो साधना है इतने फलित होएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंस इसमें होता है। जैसे श्रीदेवी बा ने हमको दीक्षा दिया था, बाद में इधर आए दीदी है वहाँ पे, ये भी लंदन मंडल हमारा चला रहा था। तो ऐसे विस्तार बहुत हमारे ऐसे 100 फैमिलीज लोग हैं कि हम लोग श्री विद्या का दीक्षा देते हैं। पर हमारे में ज़्यादा अनुष्ठान होते हैं, ज़्यादा मंत्र जप का आराधना ज़्यादा होता है। बाद में उसका पात्र साधन पूजन जो भी है ये भी चलता रहता है। अभी हमारा कड़ी में हमारा जो गुरुजी वहाँ पे, गुरुजी की बेटी ये चला रहे थे पीठ पे। तो अभी जो फॉरेन में है, अभी तकलीफ़ क्या है कि अभी आजकल का जो ज़माना, जो लड़के लोग हैं, मेरे को भी यही प्रॉब्लम है कि अच्छा है कि आप लोग संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत का ज्ञान होने चाहिए। हमको भी मातृका सीखने को बाहर भेजा था कि आप मातृका पहले सीखो, सब कुछ बाद में आएगा। पर अभी वहाँ के ऐसे है कि गोरे लोग कई लोग अच्छा साधक भी होते हैं, आते हैं क्या सीखे कैसे सीखे। तो समस्या तो ये प्रॉब्लम तो है कि लैंग्वेज इज़ अ बिग इशू, संस्कार जो होता है ये भी बहुत बड़ा इशू है। ऐसे हमको मालूम कि गुरु है तो उसको दंडवत प्रणाम करना है, ये सभी को सिखाना पड़ता है। पर अभी मैं ये भी इधर भी देखता हूँ कि बाहर भी कि इधर भी बहुत ये कम हो गया। जो इसमें एक सीक्रेट है, जो आपको पूर्ण होना है साधना में तो एक ही है, आप गुरु को समर्पण हो जाओ, समर्पण और कुछ नहीं, विद्वता कुछ भी नहीं सिखाना पड़ता। जब समर्पण होता है तो आपका जो पात्र इतना खाली होता है, गुरु पूरा भर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये समर्पण भाव होने चाहिए। आजकल तो बस सब सीख के सब तैयार हो के आते हैं गुरु के पास, और बस मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, पर ऐसे नहीं हो सकता है। तो बस मेरा विनती यही कि बस जो गुरु आप लोगों ने बनाया है तो उसके पाँव पकड़ो और बस ये जो बोले को साधना करो। अभी दूसरी बात यही है कि अभी जो फॉरेन में श्री विद्या का संप्रदाय से बहुत चलता है। आजकल तो इंटरनेट में सभी जगह पे आप देखते हैं कि श्री विद्या तो बहुत ही चलता है। मेरा सोच में ऐसे है कि बहुत गलत है आजकल, क्योंकि गुरु आप ऐसे पढ़ के ऐसे इंटरनेट में आप दीक्षा नहीं देते हैं। आपको गुरु के साथ बैठते हैं, गुरु को मालूम होने, ही शुड बी एबल मेजर यू, आपका माप होने चाहिए कि आपका प्रकृति कैसा है, क्या मंत्र आपका असर होएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनेट में मत जाओ। आजकल तो गुरु बस थोड़ा पढ़ के बड़ा गुरु हो जाता है, ये भी बात है। अनुभव होने चाहिए, थोड़ा उम्र भी होने चाहिए, इसलिए कि 1-2 साल में गुरु बन गया। तो इसलिए मैं शुरुआत बोले कि कम से कम 3 जनरेशन होने चाहिए गुरु का आपसे, इससे पहला। आजकल तो मैंने ऐसे भी सुना कि मेरे को भगवती ने स्वयं दीक्षा दी है और मेरे को आगे क्या बढ़ना है, ऐसे कई बार के सपने में आता है, होता है कई लोग, अच्छा है। पर मेरा ये है कि भगवती आपको मिला है तो आराधना करने की क्या ज़रूरत है। तो यही बात है कि ठीक है, कई बार भगवती दर्शन करा देती है, ऐसे कुछ बात नहीं, पर गुरु तो चाहिए, क्योंकि आपको क्रम आगे कैसे सिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात है कि जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, नए जो बच्चे लोग हैं, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु पे सीखो और उपासना खूब करो, कुछ जल्दी नहीं है, आएगा, सब कुछ आएगा जब आपकी तैयारी होए।
पर गलत मत कर, बिजनेस मत करा था। कई बार मैं सोचता है कि कई बार मैं पढ़ता, जो लंदन में आते हैं जो गुरुजनों, कई लोग आते हैं दीक्षा देते हैं, पंचदशी का जो भी है 1,000-1,00,000 रुपया देते हैं वगैरह, पैसा। डू नॉट बाय मंत्र, मंत्र इज नॉट पेड। ये देवी का कॉपीराइट, हमारा खुद का कॉपीराइट नहीं है। हमारा गुरु हमारे पास नहीं ले तो हम आपके पास क्यों लें? ठीक है, प्रयोग अलग बात है, पर जो आपके आत्मा के कल्याण के जो होता है आपको खुद खरीद नहीं सकते ये मंत्र, तो ये बहुत सोचना पड़ता है। तो इसके आजकल जो the way of Sri Vidya that is going nowadays, it is quite scary. I think this morning one of the acharyas had mentioned that the situation of Sri Vidya is quite scary. तो इसलिए हमारा सभी के हाथ में, हमारा सभी का इम्पोर्टेंस है साथ में, कि हम साथ में मेक श्योर दैट जो विद्या है, ये जो प्रॉब्लम की जो भी विद्या है, ये श्री विद्या अच्छे हाथ में और अच्छे परंपरा में आगे चलने चाहिए, ये बात है। अभी ओके, स्कूल्स ऑफ श्री विद्या, ऐसे जो यूरोप में एक ओमकारानंद आश्रम करके जगह है स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ भी श्री विद्या का दीक्षा होता है। वहाँ साधु संन्यासी बहुत है, और है वहाँ पे सब गोरे लोग हैं, पर वहाँ PhD करते हैं वेदों में। एक आदमी मिला था, भास्कर स्वामी, तो उसने कुछ सामवेद पे उसने PhD किया है। तो उसने बोला कि आपको ये जो विद्या आप सामवेद देखा ना सबसे पुराना, तो हमारा जर्मन यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग जो बोलते हैं ना कि जर्मन लोग सब ले गया, सही बात है, क्योंकि वहाँ तंत्र भी बहुत पड़ा है, लेकिन वहाँ गोरे लोग भी संभालते हैं और रिसर्च भी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे ओमकारानंद आश्रम का जो स्विट्ज़रलैंड में वहाँ भी श्री विद्या अच्छे चलता है। ऐसे UK में जो हमारा जो श्री विद्या उपासना मंडल UK चलता है, ये भी कई साल से ऐसे 1970 से चलता रहता है, तो दीक्षा देते हैं, आगे हम क्रम लेते हैं। ऐसे यूरोप में कई लोग होते हैं। और दूसरे क्या है कि मैंने अभी शुरुआत में बोला, जो शाक्त है, ऐसे तो सब लोग भगवती का अलग अलग ढंग से मानते हैं, पर जैसे श्री विद्या ऐसे है तो बहुत कम लोग हैं। अमेरिका में कई परंपरा है, जैसे भास्कर प्रकाशन लोग जो है, ये लोग भी अच्छे दीक्षा से अच्छे लोग को आगे ले जाते हैं, मेहनत करके अनुष्ठान करा के। ऐसे गुहानंद में, जैसे साउथ में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम साउथ में क्या कि ये लोग संस्कृत थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं ये लोग, तो इसलिए ये दक्षिणा मार्ग में, ये जो श्री विद्या में थोड़ा उसका थोड़ा कम्प्लीटनेस ज़्यादा है होता है। पर ऐसे गुहानंद मंडली जो है, उसका भी कई परंपरा चल रहा है अमेरिका में भी, अभी वहाँ अच्छा साधना करते हैं लोग। ऐसे तो फॉरन में ऐसे कई साधना स्कूल है, पर लेकिन आजकल बहुत है, आज इंटरनेट पे लोग आते हैं, सभी को मंत्र देते, तो बाद में क्या होता है, शिष्य को मालूम नहीं पड़ता ये मंत्र है क्या मैं आगे करूँ, मैं कैसे माला करूँ। ऐसे तो स्पर्श करते हैं ज़मीन पे, ऐसे माला करते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो जाए। तो इसलिए गुरु के सानिध्य रहो, गुरु जो है उसका पाव पकड़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आगे तो मैं बस संपूजकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाच तपोधनश्च देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति शान्तं भगवान् कुलेश। जय हिंद।